So, till now we have understood about the first chapter of योग सूत्र. तो आज तक हमने योग सूत्र के प्रथम पाद के बारे में समझा एंड वी अंडरस्टूड व्हाट एग्जैक्टली इज़ द मीनिंग ऑफ योग डेफिनेशन. योग का डेफिनेशन परिभाषा क्या है, चित्त वृत्तिस, फिर चित्त विक्षेप क्या है, और उसके बाद हमने देखा कि समाधि के अलग अलग स्वरूप क्या हैं. सो वी अंडरस्टूड अबाउट द definitions of yoga, definition of yoga according to Maharishi Patanjali. Then we understood the chitta vikshepas, chitta vrittis, different stages of samadhi. Now we are starting the second chapter, and second chapter basically it focuses on the sadhana pad. So it is mainly based on the sadhana and what all different sadhanas or practices we are supposed to do to achieve the first samadhi pad. So the first sutra of your sadhana pad starts with Kriya Yoga. So Maharishi Patanjali says, Tapa Swadhyaya Ishwar Pranidhanani Kriya Yoga. So Tapah means austerity, यानी कि तपस्या. स्वाध्याय मतलब कि सेल्फ स्टडी या स्व अध्याय, और ईश्वर प्रणिधान मीन्स सबमिशन टू गॉड और सरेंडेंस टू गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति श्रद्धा, भक्ति और समर्पण. इस चीज़ को हम कहते हैं क्रिया योगा, यानी कि प्रैक्टिकल पार्ट ऑफ द योगा. तो तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान कॉन्स्टिट्यूट द क्रिया योगा. तो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि वी ऑल नो कि देर आर डिफरेंट स्कूल्स ऑफ क्रिया योगा. आप लोगों ने सुना होगा कि देर इज़ ए स्कूल ऑफ क्रिया योगा विच इज़ गिवन टू द ह्यूमैनिटी बाय बाबा जी, एंड दैट बेसिकली स्कूल इज़ द स्कूल ऑफ सिद्धास. तो whether Maharishi Patanjali is Siddha or not, so let us understand one thing, that Maharishi Patanjali belongs to the same 18 Siddhas lineage. He is not different. So this Kriya Yoga also is same thing only. Only thing is based on the individual development of your buddhi, you can decide the practices. So it is one and the same, there is no difference, because the author belongs to the same lineage of 18 Siddhas. So Kriya Yoga is made up of it is mainly made up of Tapas, Swadhyay and Ishwar Pranidhana. So Kriya Yoga is mainly, क्रिया योग किस चीज़ से बना हुआ है? तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान से मिलकर क्रिया योग बना हुआ है. क्रिया योगा which refers to the activity is the discipline of prayer, the study of family Vedic scriptures as taught by the instructor, and the thoughtful submission to the Lord and the intricately interwoven order of his cosmos. तो क्रिया योग क्या है? तप है, ऑस्टेरिटी है. सो बेसिकली यू आर प्योरीफाइंग योर फिजिकल बॉडी, योर माइंड, योर इंद्रियास. सो दैट इज योर तप. स्वाध्याय इज सेल्फ स्टडी ऑफ द स्क्रिप्चर्स, मेनली द आगम शास्त्र. सो आगम शास्त्र are the shastras which came to us from the divine beings. जैसे कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं, चाहे आप वेद ले लीजिए, पुराण ले लीजिए, या फिर उपनिषद ले लीजिए, 6 दर्शन हैं उनको ले लीजिए, इन सभी दर्शनों को लिखने वाले हमारे आपकी तरह साधारण लोग नहीं थे, ब्रह्मर्षि थे. तो जो उन्होंने ग्रंथों की लेखनी की या रचना की, उन ग्रंथों का ही हमें अध्ययन करना है. उन्हीं ग्रंथों को हम स्वाध्याय में रख सकते हैं. आजकल कॉपी पेस्ट का ज़माना है और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, उनको हम स्वाध्याय में नहीं ले सकते, क्योंकि स्वाध्याय ऐसा होना चाहिए जो आपके स्व अध्याय के लिए हेल्प कर सके. बिकॉज इफ़ यू फॉलो any other scriptures or any other type of text,
those texts will not help you for the introspection of on your own self. तो इसलिए it has to be only either through the Vedas, through the Upanishads, or through the 6 Indian philosophies, or which is related to the yoga. तो योग से related होना चाहिए, because we are talking about the union between the individual self with the universal self. Then after that, a thoughtful submission to the Lord. ईश्वर के प्रति असीम श्रद्धा होना चाहिए. You have to submit your ego, your I-ness, your ahankar to the Lord. If you are not able to submit your ahankar or ego to the Lord, definitely you are not going to get success in the field of sadhana. So it is very important that you submit yourself to the Supreme Consciousness. So literally the term tapas means to burn, to generate heat, or to release energy. तो तपस्या का मतलब क्या है? When you perform tapasya, you basically burn yourself in the fire of yoga. आप अपने आप को योग की अग्नि में जलाते हैं, उसी को तपस्या कहते हैं. देन जब भी आप अग्नि में अपने आप को जलाते हैं योग की अग्नि में, तो उससे काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न होती है. देयर इज ए जनरेशन ऑफ द हीट, and lot of heat is generated and lot of energy is generated, often interpreted as austerity, tapasya, penance, or asceticism. Tapas actually refers to a practice that fully exposes the flaws and dross of one's own inner self. तो तपस एक ऐसी प्रक्रिया है कि if you perform tapasya intensely, you burn your life in the path of yoga, you generate a lot of heat by practice of sadhanas and lot of energy by the practice of sadhanas, so it purifies your body totally. So basically when you perform the tapasya, it helps you to release all the deep suppressed pent up things. It comes out and you really know what all impurities are there inside you if you are aware of it. Similarly, the term swadhyaya requires some explanation now here. Although its etymology refers to one's personal analysis or research. So basically swadhyaya means swa-adhyay, self-analysis. But here scriptures like Bhagavad Gita are to be studied using this term, because Bhagavad Gita is something, because why I am not using any other text's name? Reason is, all other texts, if you compare with Bhagavad Gita or Yoga Sutras, no one reaches to this. People say that you follow me, I am the best. You follow me, I am the best. But Bhagavad Gita never says that I am the best. And if you compare the whole universe, if you compare everything, there is only one text, or there is only one scripture which says that it is directly given by God. No other scripture tells that it is directly given by God. कभी भी नहीं कहा जाता. तो in that scripture God himself tells that I am the God and you have to do this. नहीं तो आपको कहीं ना कहीं से you will listen the different stories that it has come from some or other ways. So Bhagavad Gita is the only authentic text, I can say, along with the Yoga Sutras or Upanishads, whichever is related to the yoga. So swadhyaya of those scriptures, and after swadhyaya of those scriptures, contemplation on whatever you have studied. तो आप भगवद गीता पढ़ें, क्योंकि भगवद गीता में स्वयं भगवान कृष्ण ने ही कहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ. अब ईश्वर हूँ का अर्थ है कि हम ब्रह्मास्मि एक स्टेट है. ही हैज रियलाइज दैट स्टेट एंड ही इज टेलिंग दैट एंड ही इज लिविंग दैट स्टेट. कोई भी और ग्रंथ आपको ये नहीं बताते कि जहाँ पर ईश्वर स्वयं प्रकट हो जाएं और आपको कहें कि मैं ही ईश्वर हूँ और ये मेरी चीज़ें हैं, इसको आपको करना है. तो भगवद गीता या योग सूत्र या इन चीज़ों को छोड़कर संसार में कोई ग्रंथ नहीं है, कुछ है ही नहीं जो आपको आत्मज्ञान के बारे में सच्चा ज्ञान दे सके. हर जगह एक भ्रम है, एक तकलीफ़ है, भ्रम है, आदमी उसमें फंसता है, वो क्लेशों में बंध जाता है. लेकिन योग एक ऐसी विधा है जिससे आप क्लेशों से बाहर निकल सकते हैं. तो इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट दैट आप पढ़ें, भगवद गीता का अध्ययन करें या शास्त्रों का अध्ययन करें, और फिर उसको उस जो भी आपने पढ़ा उसको आत्मसात करें, उस पर ध्यान लगाएं, ध्यान लगाकर समाधिष्ठ होने की कोशिश करें.
तब क्या होगा कि आप समझ पाएंगे कि इस ज्ञान का वास्तविक अर्थ क्या है। तो द मीनिंग ऑफ स्वाध्याय इन सूत्र 32 इज डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज गिवन इन दिस सूत्र। हियर इट रिफर्स टू अटेम्प्टिंग टू व्यू योरसेल्फ फ्रॉम द वेरियस एंगल्स। तो स्वाध्याय मतलब कि एक तो है कि आपने अध्याय कर लिया, यू हैव स्टडीड सम स्क्रिप्चर्स which is ultimately going to guide you. But after reading those scriptures, if you don't apply those scriptures on you, मतलब सभी ग्रंथों को आपने पढ़ तो लिया है लेकिन उसको कभी भी अपने जीवन में उतारा नहीं, जीवन में उतारा नहीं है और आपने उसको आत्मसात नहीं किया है, तो वह स्वाध्याय नहीं कहलाएगा। अर्थ ये हुआ कि अगर आप क्रिया योग के साधक हैं तो शरीर उससे जो भी मिली जुली चीज़ें हैं, यानी कि आपकी इंद्रियां, आपका मन क्रिया योगियों की तरह होनी चाहिए। किसी भी तरह के ऐसे विचार स्वाध्याय के समय नहीं आने चाहिए, जैसे कि आपके साथ किसी ने कुछ अच्छा किया है तो वो भी याद नहीं आना चाहिए, बुरा किया तो वो भी याद नहीं आना चाहिए। एक समभाव होना चाहिए, क्योंकि जैसे हमने पहले सूत्र में पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य विषय नाम। तो मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा नाम सुख दुख पुण्य पुण्य नाम भावना चित्त प्रसन्न। तो इनकी भावना हमेशा बनी रहे, तब जाके आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो सब दिखावा है। तो अध्ययन ऑफ योर ओन फेस रिफर्स टू इन डेप्थ एग्जामिनेशन ऑफ योर ओन सेल्फ। आप आईने के सामने खड़े हो जाइए, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर and just see, look at yourself. Are you the same person who is reading it and who's experiencing it, or you are the person who is just reading to show the world that you are just reading it, but अंदर से आप वैसे नहीं हैं। तो आप आईने के सामने खड़े होकर देख सकते हैं, इंट्रोस्पेक्शन, अपने आप को पहचानिए। Similarly, the term Swadhyaya refers to the in-depth examination of oneself encompassing an analysis of total framework of one's own personality. तो आप अपनी पर्सनालिटी का तो अध्ययन कीजिए स्वाध्याय अगर आप कर रहे हैं तो। स्वाध्याय का अर्थ केवल किताब पढ़ लेना या बाँचना नहीं होता, उसको पढ़ने के बाद उसको आत्मसात करना और अपने आप को एनालाइज करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट है। Now next is प्रणिधान। तो प्रणिधान ऑफ होम, सबमिशन टू होम, सबमिशन टू ईश्वर। अब देखिए यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं, एक है गुरु के प्रति और दूसरा है ईश्वर के प्रति। ईश्वर साक्षात आपके सामने नहीं प्रकट होंगे कभी भी, तो ईश्वर ने दो लोगों को आपके जीवन में भेजा है जिनको आप उनके समकक्ष मान सकते हैं, क्योंकि ईश्वर तो ईश्वर है, उनके जैसा तो कोई है नहीं। पहला आपके पास जो आता है, द फर्स्ट पर्सन whom you can consider as ईश्वर, जिसको आप ईश्वर मान सकते हैं, is your mother who has given birth to you and your guru। तो आपके गुरु और आपकी माता जो हैं उनको आप ईश्वर तुल्य मानकर पूरी तरह से समर्पित हो सकते हैं। अब समर्पित होने के समय पे हम ये नहीं देखते हैं कि हमारा समर्पण जो है उसके बदले हमें कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। मतलब when you are surrendering to somebody, don't expect that he will do something for you। अगर वो एक्सपेक्टेशन है, सपोज दैट एक्सपेक्टेशन इज दैट पर्सन ऑल्सो शुड गिव यू बैक समथिंग, सो दैट इज़ नॉट सरेंडरेंस। उसको हम सबमिशन नहीं कैसे कह सकते, उसको प्रणिधान नहीं कहा जा सकता। सो इट हैज़ टू बी ओनली फ्रॉम वन साइड। तो यहाँ पर ईश्वर प्रणिधान का अर्थ है टोटल सबमिशन टू द सुप्रीम सेल्फ। क्योंकि अगर आप घर से शुरू करेंगे, इफ़ यू स्टार्ट फ्रॉम योर मदर, योर गुरु, देन इट विल हेल्प यू टू सरेंडर टू द हायर सेल्फ। बिकॉज जब तक आप ईश्वर के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण नहीं रखेंगे और पूरी तरह से समर्पित नहीं होते हैं, तब तक आप किसी भी हालत में समाधि की सिद्धि आपको नहीं मिल सकती। तो समाधि सिद्धि होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ईश्वर प्रणिधान का भी अभ्यास करें। नॉर्मली इट इंडिकेट्स सरेंडरिंग वन सेल्फ टू द गॉड, और ईश्वरा इज़ द कॉन्शियसनेस विद इन। तो अंदर जो चेतना है आपके, उस चेतना के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना।
सो अंदर जो चेतना है उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाना, क्योंकि अगर आप समर्पित नहीं होते हैं तो नेचुरली आपके अंदर वह अहंकार के रूप में बना रहेगा कि मैं, मेरापन, मेरा नाम संतोष, आपका नाम कुछ भी। तो हमें वही तो समर्पित करना है। जब नदी बहती है तो आप एक नदी हैं और जो ईश्वर है वह समंदर है। तो आप बहते हुए समंदर की तरफ जाएंगे और समंदर में जहाँ नदी एक हो जाती है समंदर के साथ, वहाँ पर आप गंगा, यमुना या कोई भी जो नदियाँ मिलती हैं समंदर से, उनको आप अलग उठा के उसके पानी को नहीं बोल सकते कि ये गंगा का है या यमुना का है। सो व्हेन यू आर मर्जिंग यू हैव टू मर्ज फ्रॉम योर सेल्फ। अगर अहंकार बना रहा अंदर तो यू विल नेवर बी एबल टू मर्ज। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा के साथ, भक्ति के साथ और पूरी तरह से समर्पित हो जाएं आप, ताकि आपको साधना में सफलता मिले। तो ये पूरा तीनों प्रोसेस जो है, दिस ऑल द थ्री, तपस्या ऑफ योर फिजिकल बॉडी, योर इंद्रियाज, प्यूरिफिकेशन ऑफ दैट, स्वाध्याय ऑफ सेल्फ ऑफ योर स्क्रिप्चर्स along with your self analysis, and ईश्वर प्रणिधान, श्रद्धा, भक्ति, समर्पण अपने गुरु के प्रति, अपने बड़ों के प्रति, अपने माता पिता के प्रति। और क्रिया योग एक ऐसी विधा है जो आपके संस्कारों को और उन संस्कारों से उत्पन्न हो रहे क्लेशों को, क्योंकि संस्कार अच्छे किए हमने, बुरे किए, उसी के आधार पर हमें अपने जीवन में सुख और दुख भोगना पड़ता है। तो दिस क्लेशास बेसिकली हैव गॉट डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ आवर डे टू डे लाइफ। तो इसलिए फर्स्ट वर्क एंड ट्राई टू लर्न क्रिया योग फ्रॉम ए एक्सपर्ट योगी, बिकॉज क्रिया योगा इज ए बेसिक प्रैक्टिस ऑफ कुंडलिनी योगा। अगर आप क्रिया योग कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि इट हैज़ टू टेक यू टूवर्ड्स कुंडलिनी योगा, क्योंकि तब स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान के बिना यू विल नेवर बी एबल टू अवेकन कुंडलिनी। और जब तक कुंडलिनी जागरण नहीं होती योग में, आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। यू विल नेवर बिकम, you cannot be called as a accomplished yogi unless and until Kundalini is awakened. So Kriya Yoga is a basic preparation for that. So remember that these three are very important parts of Kriya Yoga. So now after this sutra, next we will go for the next sutra,